بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی این این نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ سی این این نیوز کے پروگرام عالمی منظرنامہ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ افغانستان کی صورتحال امریکہ کی جنگ پسندی اور بے جا مداخلت کا نتیجہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ ترجمان نے امریکی وزیر خارجہ کے الزامات مسترد کر دیے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کا عوام سے خطاب۔ اسرائیل کو خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ صہیونی رجیم اور امریکہ کی حقیقت کے درمیان فرق انتہائی مشکل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی بیرسٹر سلطان محمود سے خصوصی ملاقات۔ پارٹی مضبوط کرنے کے لیے بیرسٹر سلطان کو مکمل مینڈیٹ دیا۔ سیاسی قد کاٹ کی حامل شخصیات کی بیرسٹر سلطان محمود سے خصوصی ملاقاتیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں 3 روز مکمل لاک ڈاؤن رہے گا۔ تمام دکانیں، کاروباری ادارے اور ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند رہے گی۔ ضلع میں کورونا کے 408 کیسز موجود ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 2 بھارتی فوجی اہلکاروں کی خودکشی۔ کپواڑہ اور پونچھ میں کانسٹیبل کندم رام نے اپنی سروس رائفل سے خودکشی کی۔ اب تک بھارتی فوجی اہلکاروں کی خودکشیوں کی تعداد 465 ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی عالم اسلام سوگ میں ڈوب گیا۔ حسینیہ مسجد میں ذاکروں کی جانب سے امام حسین کو پرسا دیا گیا۔ عالم اسلام کی بقا اور سلامتی کی دعائیں۔ بارش کے بعد برمنگھم کا قبرستان ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا۔ کمیونٹی ممبران کی انتظامیہ پر شدید تنقید۔ انتظامیہ کا جلد از جلد نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اور پاکستانی کرکٹرز بھی ترک ڈرامہ ارطغرل دیکھنے والوں میں شامل۔ کپتان نے کہا، مجھے نہیں لگتا کوئی یہ ڈرامہ نہ دیکھ رہا ہو۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham. B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. جی ویلکم بیک، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال بنی ہے وہ امریکہ کی جنگ پسندی اور بے جا مداخلت کا نتیجہ ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال بنی ہے وہ امریکہ کی جنگ پسندی اور بے جا مداخلت کا نتیجہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے نئے ترجمان سعید خطیب زادہ نے امریکی وزیر خارجہ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی جو صورتحال بنی وہ امریکہ کی جنگ اور بے جا مداخلت کا نتیجہ ہے۔ امریکہ نے ایران پر طالبان کے لیے ہتھیار فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ کا بیان دراصل افراتفری پھیلانا اور واشنگٹن کی جانب سے دہشت گرد گروہ داعش کی مدد سے افغان عوام کی توجہ ہٹانا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ابھی تک امریکہ نے نیٹو کے دائرے میں داعش کو مدد فراہم کرنے والے ہیلی کاپٹروں کے بارے میں افغان عوام کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ جی آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے آغاز میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے قوم سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غاصب اسرائیل خطے کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل میں فرق کرنا انتہائی مشکل ہے۔
अहवाल इस रिपोर्ट। लबनानी इस्लामी मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने पहले इस्लामी महीने मुहर्रमुल हराम के आगाज के हवाले से कौम से खिताब किया है। उन्होंने गासिब सेहूनी रजीम इसराइल को खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि इस सेहूनी रजीम और अमरीका की हकीकत के दरमियान फर्क इंतहाई मुश्किल है, जबकि ये दोनों हुकूमतें अपने मखसूस अहदाफ के हुसूल के लिए सरगर्म हैं। सैयद मकावत अपने खिताब के दौरान उम्मत मुस्लिम और बिलखुसूस लबनानी अवाम को गासिब सेहूनी रजीम के वजूद में आने की तारीख का बतौर मुतालिया करने की दावत दी। सैयद हसन नसरुल्लाह ने फलस्तीनी और फलस्तीन में दाखिल होने वाली जारह कुव्वतों की तारीख के साथ गहरी आशनाई को गासिब सेहूनी दुश्मन के साथ मुकाबले का लाजमी जुज़्व करार दिया और कहा कि इस नासूर यानी गासिब सेहूनी रजीम के साथ सलूक का तरीक़ाकार समझने के लिए हमें चाहिए कि फलस्तीन की गुज़श्ता 100 साला तारीख का गहरा मुतालिया करके इस रजीम की ताकत और कमजोरी के नुकात की पहचान हासिल करें। उन्होंने कहा कि इन सेहूनियों की जानिब से सिर्फ फलस्तीन के अंदर ही कब्जे पर मबनी ऐसा इकदाम उठाना ये साबित करता है कि ये मसला मुकम्मल तौर पर सियासी है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मक्का फतह किए जाने की जानिब इशारा करते हुए कहा कि हजरत वो जिन्होंने करबला का हमासा रकम किया है आज हमारे आइडियल हैं। वो सख्त दिनों में भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना हैं और हमें चाहिए कि हम साबित कदम रहें और वकू पजीर होने वाले वाकयात से न डरें। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी तारीख ऐसी अजीम और मुमताज शख्सियात से भरी पड़ी है जिनसे बहुत कुछ सीख कर जिंदगी में उनसे मदद ली जा सकती है। यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में सबील फाउंडेशन बरतानिया, यूरोप, पाकिस्तान और दुनिया भर के गरीब ममालिक में फूड पार्सल, मेडिसिन्स और हाइजीन किट्स फराहम कर रहा है। 100 पाउंड्स के पैकेट से इन गरीब अफराद की मदद की जा रही है। आगे बढ़िए और दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए। डोनेशंस के लिए अभी राब्ता करें 0203 500 9786। Burke's Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burke's Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. जी वेलकम बैक। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि वजीर आजम इमरान खान की साबिक सदर वजीर आजम आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद से खुसूसी गुफ्तगू। मुलाकात में अहम अमूर पर बातचीत की गई। सियासी कदकाज के हामिल शख्सियात की बैरिस्टर सुल्तान महमूद से टिकट्स मांगने की खबरें भी गर्दिश में हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट। वजीर आजम पाकिस्तान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से PTI कश्मीर के सदर और साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की अहम मुलाकात हुई है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात में आजाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारी, पार्टी उमूर और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक इमरान खान ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद को मुकम्मल मैंडेट दिया है कि वो पार्टी मजबूत करने के लिए जोड़ तोड़ शुरू करें और आइंदा हुकूमत बनाने के लिए सियासी कदकाज की शख्सियात को तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाएं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इमरान खान को बताया कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया में मुकीम कश्मीरी हमारी कॉल के इंतजार में हैं। इसलिए बैरून मुल्क एहतजाज की कॉल दी जाए ताकि भारत पर प्रेशर डाला जा सके। सियासी कदकाज की हामिल शख्सियात की बैरिस्टर सुल्तान से टिकटें मांगने की खबरें भी गर्दिश में हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा और पूंछ में 2 भारतीय फौजी एहलकारों ने खुदकुशी कर ली। मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा और पूंछ में 2 भारतीय फौजी एहलकारों ने खुदकुशी कर ली। कुपवाड़ा में भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 169वीं बटालियन के हेड कांस्टेबल कुंदन राम कुमार ने जिला के इलाके बनवारी में अपनी सर्विस राइफल से खुदकुशी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे फौजी ने सरहदी जिला कुपवाड़ा में खुदकुशी की। मकबूजा इलाके में जनवरी 2007 से अब तक खुदकुशी करने वाले भारतीय फौजी और पुलिस एहलकारों की तादाद 465 हो गई है। और आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर
पूरे इलाके में 3 रोज का मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने की हिदायत जारी कर दी। मकबूजा कश्मीर में जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सदा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके तहत जिला में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के मद्देनजर एहतियाती तौर पर 3 रोज तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने के अहकाम सादिर किए गए हैं। लॉकडाउन फिलहाल 21, 22 और 23 अगस्त तक नाफिज रहेगा। जिला में तमाम दुकानें, कारोबारी इदारे और ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। SP को हिदायत की गई कि वो लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए कस्बा के अहम मकामात पर नाके कायम करें और पुलिस एहलकारों की तैनाती को यकीनी बनाएं। जिला अनंतनाग में अब तक 1940 लोग कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं, जिनमें 1495 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि इस मुहलिक वबा से 43 लोग हलाक हो चुके हैं। वहीं जिला में इस वक्त 408 कोरोना के फाल केसेस मौजूद हैं। यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। यूके प्लास्टिक्स, जहां पर खूबसूरत टाइल्स, दीदाज़े बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। यूके प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121-448-1530। अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। 1442वीं हिजरी मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने के बाद पूरा आलम इस्लाम सोग में डूब गया। बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। जाकिरीन की जानिब से नुहा खानी और मातम के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफका को पुरसा दिया गया। इस दौरान अलमे अब्बास भी बुलंद किया गया और आलम इस्लाम की बका और सलामती के लिए दुआएं की गई। मजीद अहवाल आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट। रस्म उशाक यही है कि वफा करते हैं, यानी हर हाल में हक अपना अदा करते हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद अपने साथ खानदान रिसालत के बेसरो सामान होने की खबर लेकर नमूदार होता है और सादात के घरों में कोहराम बर्पा हो जाता है। 1442 ईस्वी मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही पूरा आलम सोग में डूब गया है। गुज़श्ता रोज चांद रात की मुनासिबत से इदारा मुआरिफ इस्लाम बर्मिंघम हुसैनिया मस्जिद के बाहर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई, जिस दौरान जाकिरीन ने नोहा खानी और मातमदारी के जरिए इमाम हुसैन और उनके रुफका को पुरसा दिया। कोरोना वायरस के साथ ये पहला मुहर्रम है जिस दौरान बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने हुसैनिया मस्जिद रीजन पार्क को तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ 600 आदमियों की एक टाइम में मजलिस करवाने की इजाजत दी है। हुसैनिया मस्जिद की इंतजामिया ने 600 अफराद को बाकायदा तौर पर रजिस्टर करके उनको कार्ड जारी किए हैं और जिनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा वही मजलिस में शिरकत कर सकेगा। इसके अलावा बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर मुतालिका जगह को मार्क किया गया है ताकि एक साइड से दाखिल होकर बैठें और दूसरी साइड से खुरूज हो। मजलिस में वुजू तमाम अफराद को घर से कर आना होगा। रात 7 बजे मर्द हजरात जबकि दिन 10 बजे खवातीन की मजालिस होंगी। इस मौके पर अशरा मुहर्रम पढ़ने वाले मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद नजमुल हसन नकवी और हुसैनिया मस्जिद की इंतजामिया के तर्जुमान सज्जाद हुसैन ने CNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तमाम मोमिनीन से गुजारिश की है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखते हुए तशरीफ लाएं ताकि हम तमाम अपने आप को महफूज रख सकें। मुहर्रम में हमारी वाबस्तगी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बेहतर अंदाज में होनी चाहिए। मुहर्रम दर हकीकत पाकीज़गियों की मेराज, मुहर्रम दर हकीकत इबादत की मेराज है। बंदगी और अल्लाह ताला से राब्ते का एक बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तक़र्रुब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तक़र्रुब यानी खुदा का क़ुर्ब है। परवरदिगार हमें इंशाअल्लाह इस मुहर्रम में इस हकीकत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला ताहिरीन। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी मुहर्रम का चांद नजर आते ही सादात व मोमिनीन के घरों से गिरिया व बुका की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और हर जा एक ही सदा सुनाई दे रही है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और बर्मिंघम का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बारिश के बाद नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। कब्रों में पानी जाने के खदशे के पेश नजर लोकल कम्युनिटी में गम गुस्सा की शदीद लहर दौड़ गई।
लोकल अथॉरिटीज की अदम दिलचस्पी पर सख्त अल्फाज में तनकीद की गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी की काफी तादाद में अमवात वाक़ होने के बायस बर्मिंघम के सबसे बड़े कब्रिस्तान में काफी तादाद में लोगों की तदफीन की गई और तमाम कब्रें हालिया दिनों में ही बनाई गईं। लेकिन गुज़श्ता रोज बर्मिंघम में बारिश के बायस कब्रिस्तान में पानी आ गया, जिसने कब्रों को भी अपनी लपेट में ले लिया। हैंड्सवर्थ कब्रिस्तान नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। इस मौके पर जिनके प्यारे कब्रिस्तान में दफन है वो वहाँ जाकर पानी के रास्ते को तब्दील करने लगे। ये वीडियो वायरल होने के बाद कम्युनिटी के अंदर काफी गम गुस्सा पाया गया। इस दौरान कम्युनिटी रहनुमाओं ने कब्रिस्तान में बारिश का पानी खड़ा हो जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बर्मिंघम जैसे शहर में निकासी आब का मसला पैदा हो जाना और लोकल काउंसिल का कोई एक्शन न लेना लम्हा फिक्रिया है। इस मौके पर मकामी लोगों का अपनी मदद आप के तहत निकासी या आप को हल करना काबिल सताइश है। लोकल काउंसिल को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करे कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा न हो सके। बहुत अजीब सूरत हाल है इस वक्त। कब्रिस्तान के अंदर से पानी का बड़ी तेज़ी के साथ फ्लो हो रहा है और बारिश भी तेज़ी के साथ जारी है और कब्रें नंगी होती जा रही हैं और बॉडी के पार्ट्स निकलने का अंदेशा है। इस सूरत हाल में बर्मिंघम सिटी काउंसिल और इंतज़ामिया फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। कब्रिस्तान का पानी और उसके सीवरेज के पानी का फ़ौरन अरेंज करना चाहिए और जो बाहर का पानी कब्रिस्तान में आ रहा है उसको फ़ौरन रोकना चाहिए। खौफनाक मंजर देखने को मिला है जब हैंड्सवर्थ कब्रिस्तान में हमारे प्यारों की कब्रें पानी में बह रही हैं। वहाँ पे कोई निकासी का इंतज़ाम नहीं, कोई सैनिटरी का इंतज़ाम नहीं है, सब कब्रें पानी में तैर रही हैं। तो हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से, काउंसिल से कि इस निकासी को निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि जो लोग अपने प्यारों की कब्रों पे दुआ करने जा सकते हैं उनको कोई मुश्किल दरपेश ना आए। आज बड़ा अफसोस हुआ है जब हैंड्सवर्थ कब्रिस्तान की मैंने वीडियो देखी है जहाँ पे हर तरफ से पानी आ रहा है, तो ये बड़ी लम्हा फिक्रिया है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने वजाहती बयान में फौरी तौर पर इस मसले को हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए अपनी स्टेटमेंट में कम्युनिटी के नाम पैगाम में लवाहिकीन के दुखों और खदशात को हल करने का अहद किया। और आपको बताएं कि पाकिस्तान के शाहीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स भी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के फैन निकले। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के बायोसिक्योर माहौल में फारिग वक्त में वजीर आजम इमरान खान का पसंदीदा तुर्की ड्रामा अर्तुगरुल देखकर वक्त गुजार रही है। टेस्ट कप्तान अजहर अली ने जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे नहीं लगता कोई ये ड्रामा न देख रहा हो। उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि सब खिलाड़ी मेरा भरपूर साथ दे रहे हैं। उनका कहना था कि ये ड्रामा हमारे जज्बा और ईमान में इजाफा करता है। उन्होंने कहा कि वो कप्तानी और क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.cnnnews.tv and keep watching CNN News।